Hello and good evening, everyone. We are at 4 o'clock right now. Uh, Let us begin with the session in a minute. We are also going live. Already, there are about more than 12 entrepreneurs who have joined in, and all of them are joining in as well. So, we are preparing to go live immediately. So, requesting all of you to just get ready. We have our expert Abhayji also here. In about a few seconds, she shall be live on FB. Hello, good evening, everyone on Zoom as well as the Asra Foundation welcomes all of you who are present on Facebook. The Asra Foundation के सभी entrepreneurs का स्वागत आज 4 बजे हम सब मिल रहे हैं एक बहुत ही interesting topic and most seeked for topic I would say because there is no business without sales. There is no business unless you have customers, and there is no business unless you are actually selling and converting all your leads into a sale opportunity. So today with us we have Mr. Abhay Kadegudi, who is an expert in the field of sales. अभय जी हमारे साथ पहले भी कुछ सेशंस में आए हुए हैं और उनके गाइडेंस से मुझे लगता है कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिली है। उनके साथ हमने और एक प्रोग्राम किया था जहाँ पे सेल्स पिच के बारे में अभय जी ने गाइडेंस किया था एंटरप्रेन्योर्स को और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। तो अभय जी नीवा ग्रोथ कंसल्टेंसी हैज बीन इन दिस फील्ड फॉर अ व्हाइल नाउ और आपने खुद एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस में बहुत साल काम किया है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ में है। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहता हूँ कि जब आपने सेल्स के बारे में लोगों को गाइड करने के लिए सोचा तो ऐसा कोई बिजनेस था जिसे देख के आपको लगा कि सेल्स में काम करना बहुत जरूरी है और ग्रोथ होने के लिए और बिजनेस की ग्रोथ होने के लिए सेल्स इस टॉपिक पर फोकस करना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस आया जिससे ये ट्रिगर हुआ कि सेल्स में गाइडेंस देना जरूरी है? या यस मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल thank you for inviting me, Anandji, Deasra. It is always pleasure to join all of you, and I put it on LinkedIn also ki it's wonderful to join enthusiastic Deasra team. Yeah. So it's really very exciting always to be with you on this platform. uh, I'll come to your question, but before that, a small little addition to what you said. See, today, after a lot of iterations, I can say, I today call myself as a growth consultant. Yeah, and growth can happen through various things, but I have limited my arena. And what is that arena? I say that can we use sales, marketing, CRM, and service strategy for development, and sales is very important part of it. Now, coming back to your question, not one organization, I must say, but what happened is that the first assignment I got as a consultant, this was 28 years back. Yeah, 1st of April 1994, I started that assignment, and within 1.5 year, I could grow this company from 18 lakhs to almost 2 crores. And there we realized the importance and the relevance of sales and both marketing also. But of course, before that, I had worked with an organization wherein from zero I could bring it to 25-30 crores. So all this experience played together, and then one after the other assignments kept coming, and basically I could see that entrepreneurs, they lack one skill, if you ask me, is sales marketing skill. Yeah. Absolutely, and I would say that there is a lot to learn from Abhayji beyond sales as well, because as a mentor and as a coach, there are very small little things. Coming for a session on time, okay, being particular about what you want to deliver, being clear about the content,
making sure that all the answers for each of the question that comes up has been delivered right there. So speed of activity, there are so many things that we will see as to learn from a person like Abhayji. So Abhayji, we are pretty excited to know more Thank you. about you as well as the topics that we are discussing. Yeah. Let us start with what you have as to share with all these entrepreneurs on the Yeah. area of sales and growth. Mhm. And मैं सभी entrepreneurs को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ questions हैं आपके specific business के बारे में है तो भी आप बिल्कुल बिना हिचकिचाहट पूछिए. Put it in the chat box. On FB also you can put it in the comment section, and we will come back to these questions as soon as we discuss the basic introductory topic with all of you. Over to you, Abhijit. Thank you. Thank you so much. Yeah. Friends, what I'm going to do, I'm going to start with my presentation, and let's run through the some basics, and then can you see my screen? Yes, absolutely. Yeah. Sales for growth is the topic for today, and we are here. We have exactly 1 hour to discuss this. Questions, if you have, put it in the chat box, and we'll take them as we go to the question answer session. All right. Before we start, I have a small quiz for all of you. You have to give me long form of ASBKS. ASBKS का long form आपको मुझे देना है. ये एक इंटरेस्टिंग चीज है. आप सोचिए इसके बारे में कि क्या लॉन्ग फॉर्म हो सकता है. मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक हिंट आप सबको, कि ये आज के माहौल से रिलेटेड है. हाँ, इतना ही हिंट दूंगा. आप बाकी सोचिएगा. विल कम बैक टू दिस. ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड. व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज सेलिंग? सिंपल सा सवाल है, और बहुत बार ऐसा होता है कि ये सवाल हम जब देखते हैं तो लगता है कि ये दोनों तो एक ही है ना. सेलिंग क्या, मार्केटिंग क्या, एक ही है, एक ही तो है. सेल करना, मार्केटिंग करना, बेचना तो है ना. नो, दे आर डिफरेंट. हाउ आर दे डिफरेंट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ लुक एट दिस स्लाइड. What do you see here? Marketing. Marketing is about identifying customer needs, stimulating customer needs, and satisfying customer needs. All right, that is marketing. And what is selling? Persuading. उनको मनाना है, उनको कन्विंस करना है, समझाना है, और उनको प्रभावित करना है, इन्फ्लुएंस करना है. Now, please understand that I am not going to talk only theory. I'll also give examples as we go along. I have some examples in my presentation also. I have a very live case study that I want to discuss with you. So please pay attention to what I'm saying about marketing and selling primarily, because इसके बारे में बहुत लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं. हाँ, तो मार्केटिंग हमको ये समझना है कि लोगों की क्या जरूरतें हैं, इनको समझना और उसको हमको सेटिस्फाई करना है. ये हुआ मार्केटिंग. सेल्स जो है ये कस्टमर के थोड़े और पास जाता है और उनको दिखाता है, उनको परसुएड करता है, उनको समझाता है, उनको प्रभावित करता है, और ये उनको ऑर्डर देने में वो उत्साहित करता है. हाँ, ये फाइनल चीज जो है सेलिंग में आती है. Of course, marketing doesn't end there. We always say that when you make a sale, yeah, it's not closing of sale, but it's opening of relationship. Please remember, कोई भी सेल अगर आप करते हो तो एक सेल्स में टर्म है क्लोजिंग ऑफ सेल्स. आई ऑलवेज से इट इज नॉट क्लोजिंग ऑफ सेल, इट इज ओपनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप. थिंक अबाउट इट. हाँ, कोई भी आपका बिजनेस हो, दिस अप्लाइज टू यू. या So what I was trying to show is that sales is also connected with these three things. Sales में जब लोग सेल्समैन जब बात करता है कस्टमर, तो वो समझता है. हाँ, वो उनको इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता है, डेमोन्स्ट्रेशन देता है, और वो देखता है कि वो जब जा रहे हैं वहां से तो वो संतुष्ट जा रहे हैं, वो खुश जा रहे हैं. दे आर हैप्पी अबाउट द होल थिंग. दैट इज व्हाट इज sales and marketing job. So understanding need. I'll summarize this. What is marketing? U plus S. आपको इतना US याद रखना है. Understanding and satisfying customers is marketing.
हाँ, ये बहुत सी सिंपल बात है, यूएस याद रखने के लिए, समझने के लिए। और एक चीज है सीसीडी वैल्यू। व्हाट इज सीसीडी वैल्यू? क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर, क्या? वैल्यू। Create, communicate, deliver value. It's very, very important that your customer gets value or more than she has paid. तो उनको बहुत अच्छा वैल्यू मिलना चाहिए आपकी तरफ से, किसी भी बिजनेस में आप हो, चाहे आप फूड इंडस्ट्री में हो, चाहे फैशन में हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में हो, चाहे एनी बिजनेस यू एजुकेशन में हो, जो भी है आपका बिजनेस, वैल्यू डिलीवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग में हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट बुरा है तो मार्केटिंग नहीं हो सकता है। नो गुड मार्केटिंग कैन सेल बैड प्रोडक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। प्रोडक्ट अच्छा ही होना चाहिए, प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है और इसे हम मार्केटिंग कहते हैं। हाँ, और एक मार्केटिंग में बात आती है कि आपको समझना चाहिए कि आपका टारगेट ग्रुप कौन है। आप अगर एक टॉय शॉप चलाते हो तो बच्चे बहरहाल आपके कंज्यूमर्स है, लेकिन आपके कस्टमर्स शायद पेरेंट्स है। पेरेंट्स पैसे देंगे और कस्टमर्स परचेस करे, बच्चे उन खिलौने के साथ खेलेंगे, राइट? तो नाउ लुक एट दिस कि कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा जो भी है, आपका एक टारगेट ग्रुप आपको डिफाइन करना है और उस हिसाब से आपकी सारी स्ट्रेटेजीज जो है, आपको जो सोचना है आपके बिजनेस के बारे में, वो एक करना है। दूसरी चीज है कि हर एक मार्केट में गैप होती है, या और वो गैप फिलअप करनी चाहिए। कल ही मैं मेरे कलीग के साथ बात कर रहा था और हम देख रहे थे कि खाने के लिए, खाने के रेस्टोरेंट में एक मैकडोनल्ड्स है, फिर बाकी सारे रेस्टोरेंट्स है, लेकिन जहाँ पे जाके स्वादिष्ट और फिर भी न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी दोनों, हाँ, ये ऐसा खाना मिल सकता है क्या? क्या हम ये दोनों को क्लब कर सकते हैं क्या? सोचो इसके बारे में। अभी ये गैप है इस मार्केट में, तो कैन वी फिल दिस गैप? Think about it. Yeah, every market has a gap. Sorry. Okay, so this was the other day I was presenting somewhere, and this was the company, one of the participants, entrepreneur again. What is he into? He's into transport business, logistic business using technology. Yeah. Now इनके लिए marketing हम देखते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। ये डी डायनामिक्स कंपनी है। इनको मार्केटिंग कैसे अप्लाई होगा? पहले इनको सोचना है हु इज माय कस्टमर, फार्मर है, ट्रेडर है, जो भी है, कौन है मेरा कस्टमर है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उनके पेन एरियाज क्या है। मेरे कस्टमर है, उनका कस्टमर, कस्टमर यानी फार्मर आपका कस्टमर है तो फार्मर का कस्टमर है ट्रेडर, ट्रेडर है आपका कस्टमर, ट्रेडर का कस्टमर है रिटेलर, रिटेलर आपका कस्टमर है तो रिटेलर का फाइनल कंज्यूमर इज योर कस्टमर्स कस्टमर। तो ये समझ लीजिए। हाँ, तो आपने देखा अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स कस्टमर देयर पेन एरियाज। हमको ये समझना है कि क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, और उसके अराउंड फिर हम कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। उनको हम बता सकते हैं कि भाई ये हमारे प्रोडक्ट है, सर्विस है, ये आपको सॉल्यूशन देगी, ये आपको इट विल गिव यू द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। या आस्क फॉर फीडबैक, कीपिंग इन टच विद देम। ये हुआ मार्केटिंग के बारे में। अब सेल्स की तरफ आते हैं। सेल्स में क्या होता है? आइडेंटिफाई द राइट कस्टमर्स, कनेक्ट, कम्युनिकेट, नर्चर एंड कन्वर्ट। कन्वर्ट इज गेटिंग द ऑर्डर। अभी ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी है, ये दोनों में एक अच्छा ओवरलैप है। आप देखिएगा कैसा ओवरलैप है। हाँ, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है कि मार्केटिंग क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, अवेयरनेस करता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जरूरतें क्या है वो समझता है। और सेल्स में ये कनेक्ट करने की बात है, कम्युनिकेट करने की बात है। आपका कौन कौन आपका कस्टमर है और कौन नहीं है, ये भी समझना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें जो एक साथ होती है, ये डी डायनामिक्स को भी अप्लाई होती है। एक ग्रोसरी स्टोर मेरे सामने है, उसको अप्लाई होती है, एक चाय वाले को अप्लाई होती है, एक इंडिगो एयरलाइंस को अप्लाई होती है। सारे लोगों के लिए प्रिंसिपली मार्केटिंग इज सेम। या एम आई विथ यू आनंद जी? आपको Absolutely, तो absolutely. सुनाई दे रहा है? या बिल्कुल, सो बिल्कुल. राइट, I'll move ahead.
ओके, मार्केटिंग सेलिंग का ओवरलैप हमने अभी देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि सेलिंग क्या है। सेलिंग की एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है। क्या क्या डेफिनेशन है? सेलिंग इज हेल्पिंग पीपल बाय। देखिए आप, हाँ, पहले हमको लग रहा था कि नहीं नहीं मार्केटिंग सेलिंग एक ही है, क्या बेचना तो है। हाँ भाई, बेचना है, लेकिन बेचना सिर्फ नहीं है, आपको सेटिस्फैक्शन क्रिएट करना है, आपको वैल्यू डिलीवर करना है, याद रखिएगा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ कि ये हेल्पिंग पीपल बाय, लोगों को हम मदद करेंगे। किसके लिए मदद करेंगे? उनको परचेसिंग के लिए मदद करेंगे, खरीदने के लिए मदद करेंगे। हाँ, जैसे आप अगर जाते हो एक दुकान में और आपको जैसे माइक्रोवेव ओवन खरीदना है, तो वो सेल्समैन क्या करता है, आपको बहुत सारे सवाल पूछता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आप वेज हो नॉन वेज हो, आप बेकिंग करते हो क्या। ऐसे सवाल जब पूछते हैं तो समझ में आता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, और वो ज़रूरत के हिसाब से फिर वो आपको मॉडल दिखाएगा और फिर आपको सजेस्ट भी करेगा। मेरे ख्याल से सर, मैडम, ये आपको ये मॉडल लेना चाहिए, हेल्पिंग पीपल बाय। या I hope I'm with you. Now, how does a salesperson help people by giving information, education, guidance, explanation, comparison, story. अभी ये बहुत ही जरूरी है कि अपने बिजनेस के बारे में हमारे पास कुछ कोई बहुत अच्छी स्टोरीज हो, और वो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा बड़ी बात कुछ नहीं है। स्टोरी के क्यों आपने ये बिजनेस शुरू किया, कैसे किया, कुछ आपने देखा, कुछ आपने सुना, कुछ आपने महसूस किया, तो आपने ये बिजनेस शुरू किया। एंड देन यू नो सो ऑल दिस, एवरी बिजनेस मस्ट हैव देयर ओन स्टोरी, प्लीज रिमेंबर। हाँ, ये कैसे होनी चाहिए, आप सोचिए इसके बारे में जरा। एंड यू हेल्प पीपल टू टेक डिसीजन, बहुत ही जरूरी है। तो हमने देखा कि परसुएशन, कन्विंसिंग, इन्फ्लुएंसिंग, या लोगों को हमको फॉलो अप करना है, कन्विंस करना है और उनको मनाना है, इन्फ्लुएंस करना है, प्रभावित करना है, हमने जिससे बोला। ओके, तो पुराना मॉडल ये था कि कोल्ड कॉलिंग, विजिट करते थे लोग, सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन देते थे और फिर क्वालिफाइड लीड आता था। अभी ये इंटरनेट पे भी होता है, सोशल नेटवर्क में होता है, सोशल मीडिया पे होता है। वहाँ पे आप एजुकेट करते हो, एंगेज करते हो, आप ब्लॉग लिखते हो, आप आर्टिकल लिखते हो, आप यू नो, सो ये सब चीजें व्हाट्सएप पे स्प्रेड करते हो मैसेज। तो ये सब से होता क्या है, योर कस्टमर गेट्स टू नो अबाउट यू। बट मेरे ख्याल से ये ओल्ड और न्यू की बात जो है ना, ये मुझे जचती नहीं। आई टेल यू व्हाई। आज सुबह की बात है, हाँ बिल्कुल, आज सुबह एक मेरा क्लाइंट था, सेल्स एग्जीक्यूटिव मेरे सामने बैठा था। हमारी मीटिंग हो गई, फिर हम हमारा और कुछ एजेंडा था, तो उसको हमने बोला कि अभी आप निकल जाओ सेल्स के लिए, कॉल के लिए। तो आई आस्क्ड हिम कि कहाँ जा रहे हो आप। तो कहता है, आनंद जी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आज सुबह की बात है। हाँ हाँ हाँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अभी मुझे, सो ही डिडंट हैव एनी प्लान। ऐसे ऐसा नहीं चलेगा, आपके पास प्लान होना चाहिए, एंड व्हेनेवर यू आर गोइंग आउट यू शुड हैव अ प्लान। तो मैंने उसको बोला एक काम करो ना, अभी जाओ, टेक एनी एरिया एंड जस्ट विजिट। नाउ दिस, बाय द वे, दिस कंपनी, यू नो दिस कंपनी आनंद जी, ये वायु जो है ना, बायोगैस, राइट। हाँ, तो उनका सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला जाओ किसी भी मंगल कार्यालय, मैरिज हॉल में जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो दो चार चीजें बता दी। तो एक्चुअली 10 मिनट में उसका मुझे मैसेज आता है कि ग्रुप पे मैसेज आया कि अभय सर वाज राइट, आई वेंट टू दिस सो एंड सो मंगल कार्यालय एंड दे वेलकम मी, कोल्ड कॉल, विजिट। So राइट। I don't think old is dead and new is the only answer. We have to work on combination. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है, पुराने जो चीजें उस पे से क्या लेना है वो भी देखता है, और सोशल मीडिया पे भी काम करता है, दोनों जरूरत है। हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा ही अभय माहौल जी, है। सिर्फ हाँ, एक छोटी सी एडिशन करना चाहता हूँ प्लीज कि प्लीज। इस टेक्नोलॉजी के टाइम में और डिजिटल या मार्केटिंग के टाइम में सडनली लाइव मीटिंग, पर्सनल मीटिंग हैज गेन्ड अ ह्यूज इंपॉर्टेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस रिलेशनशिप्स में अभी नॉर्मल फोन कॉल, वीडियो कॉल के साथ में वन ऑन वन पर्सनल मीटिंग ने एक अलग तरह की जगह ले ली है। and I think we will need to study it going further in the entire business model structure। and इसलिए आप जो ओल्ड और न्यू का कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं उसमें मुझे बहुत ही बड़ी वैल्यू
दिख रही है। Yes, Absolutely. I say yes, thank you. Yes, I totally agree with you. Actually मेरे पास कुछ recent HBR के papers के कुछ ये भी है, दाखले भी है, वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अभी समय नहीं है हमारे पास. बिल्कुल, बिल्कुल. But it also talks about combination, आनंद जी. Yeah. So friends, coming to digital marketing, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये सारे, अगर आपको ये ब्रांड्स मालूम है, हाँ, पेपरफ्राई, भारत मैट्रिमोनी, चुंबक, लेंसकार्ट तो सब पेटीएम सबको मालूम है, फरलेंको, फर्नीचर लेंडिंग कंपनी. नाउ ये सारी जो कंपनीज है, इसमें कॉमन चीज क्या है, कोई बता सकता है? एनीबडी हु नोज व्हाट इज कॉमन अबाउट ऑल दीज कंपनीज? Sir, they are portals. They are all portals and they are big startups. Yes, they are startups. Very good. Yes, you are right. And they What are more else? on the portals. They are on the portal side. They have got big, huge portals. Most of them. Oh yes, of course they are. They are huge. They are portals. Marketplace company is somebody writes. Okay. और क्या है कॉमन? आपने अगर इनकी थोड़ी हिस्ट्री आपको मालूम होती है तो आप ये समझ जाओगे मेरा सवाल क्या है. तीन चीजों में कॉमन क्या है सारी जो कंपनीज है इसमें? हाँ, तो हेलो. We can hear you. We can hear you. Very good, very good. Nisarg ji, you have said it absolutely right. Yeah, like our friend Nisarg Udesh is saying, ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल. यस, मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ कि ये सारी कंपनीज ऑनलाइन शुरू हुई थी और फिर बाद में इन्होंने ऑफलाइन प्रेजेंस अपनी कर दी. जैसे फरलेंको है, पेपरफ्राई के स्टूडियोज है हर तरफ, चुंबक की शॉप्स है, पेटीएम का कितना सारा हमें ऑफलाइन प्रेजेंस मिलता है. भारत मैट्रिमोनी तो एक अजीब केस है, वो हम डिस्कस करते हैं इन आवर ग्रोथ सेशंस कि दे थॉट दैट, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, या तो इनको भी लगा कि चलो इंटरनेट पे ही लगा देते हैं और मैरिजेस बन जाएगी. नहीं भाई, होता नहीं है. दे हैड टू स्टार्ट फिजिकल offices, places where people would come and talk to them, meet the prospective this thing. So all that is required. So मेरा कहना ये है कि ये बॉम्बे का चुंबक का स्टोर है, साउथ बॉम्बे. तो मेरे ख्याल से क्या है आनंद जी, अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉन्वर्जेंस, इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये दोनों का कॉन्वर्जेंस होता है एक साथ. अगर दोनों काम करते हैं, जैसा हमने बोला, ओल्ड स्कूल एंड न्यू स्कूल, दैट इज हाउ इट विल वर्क. ये और एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग एंड इनोवेशन, ये पीटर ड्रकर बहुत बड़ा नाम है हमारे मैनेजमेंट में. बिजनेस हैज ओनली टू फंक्शंस, मार्केटिंग एंड इनोवेशन. एवरीथिंग एल्स इज कॉस्ट. बाकी सब जो है वो आप खर्च कर रहे हो, मार्केटिंग करते हो. मार्केटिंग यानी क्या? अभी हमने देखा, अंडरस्टैंडिंग नीड्स एंड सेटिस्फाइंग नीड्स. या दैट इज मार्केटिंग. एंड इनोवेशन, कुछ नया हम कर सकते हैं, कुछ हट के दे सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचो, एंड देन यू विल बी सक्सेसफुल. मैं एक एक्चुअली ये जंबो किंग का केस स्टडी, बट मैं और एक दूसरा केस स्टडी लेना चाहता हूँ. कैन यू हेल्प हिम बेटर? हाँ, एक सर आनंद जी, मैं अनदर एक 5 मिनट लूंगा. एक ये केस स्टडी प्रेजेंट करना चाहूंगा. सो जो भी मैंने कहा है उसको रियल लाइफ में एक छोटे बिजनेस के लिए कैसे यूज करेंगे, इसकी ये बात करना चाहूंगा. कैन यू हेल्प हिम डिफरेंशिएट और सेल बेटर इज द टॉपिक. नाउ हु इज ही? ये देखिए, दीज आर दी वेंडर्स. अभी हुआ ऐसा कि हमारे जो पेंडेमिक की पहली वेव थी, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे, पहली दूसरी तीसरी, बहुत सारे लोगों ने अपने जॉब खो दिए. नाउ अगर जॉब खोता है, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई ट्रेवल कंपनी में, कोई यहाँ वहाँ है, तो जॉब नहीं है तो क्या करेगा? दे फाउंड दैट अच्छा ये थोड़ा वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, इसको लेके गाड़ी पे डालते हैं, बेच देते हैं. तो अभी ये लोग है, तो ये अगर बहुत ज्यादा सप्लाई होता है, आपको मालूम है कि बहुत सप्लाई अगर ज्यादा होता है तो प्राइस पे ही सब बात होती है. हाँ, निगोशिएट करना पड़ता है. अगर क्या हम इनको मदद कर सकते हैं, छोटे बिजनेस वालों को, कि आप कुछ डिफरेंशिएट करें, अलग करें, तो क्या कर सकते हैं? मेरे कुछ सुझाव है, आप देखिए आपको कैसे लगते हैं. I'll just present them. Can you help him differentiate? I'll just quickly go through. हाँ, तो ये लोग हैं, इनको हमें मदद करनी है.
तो कैसे मदद करेंगे? दे हैव टू आस्क देयर क्लाइंट्स। अगर सब्जी वाला है तो आपने कि डेली, वीकली, मंथली आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो पूछेगा। फ्रूट्स टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, पर्पस, कि क्या उनको, उनकी जरूरत है क्या है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, या उनकी ऑर्डर व्हाट्सएप पे। अभी आज हम लोग सारे व्हाट्सएप पे डील करते हैं, तो व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले सकता है, ऑर्डर के हिसाब से डिलीवरी हो सकती है। जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर, ये जो सारी चीजें अकम्पनीमेंट वो साथ में रख सकते हैं। एक टाइमिंग, हर रोज एक ही टाइम पे उसे आना है, ये बहुत जरूरी है। पेंडेमिक में ऐसा होता था कि मेरे ऑफिस के यहाँ एक लड़का अपनी गाड़ी लेके खड़ा हुआ करता था, तो मैं जाता था, मेरे पास हमेशा मैं कॉटन की बैग रखता हूँ, और मैं कुछ ना कुछ उसके पास से एवरी डे आई यूज्ड टू बाय सम वेजिटेबल और फ्रूट। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्ले के बारे में मैं आता हूँ। पेंडेमिक है, हाइजीनिक, क्लीनलीनेस, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब बहुत जरूरी है। हर एक चीज को प्राइस टैग लगानी चाहिए, जैसे कि हर कोई आएगा और आलू का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है, ये सब पूछेंगे, तो आप अगर कोई लगाता नहीं है तो यही हमको करना है ना अलग, तो सब भाव लगा दिए, सिंपल सी बात है। तो आपका टाइम थोड़ा बच गया, तो आप कस्टमर को डील कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप, फोटो, वीडियोस, लाइव लोकेशन। आप पूछेंगे कि लाइव लोकेशन सर ये थोड़ा ज्यादा नहीं होता है एक सब्जी वाले के लिए? मैं बताता हूँ क्यों। आई विल कम टू दैट। छोटे छोटे पैकिंग, अगर रेडी पैकिंग रखता है तो वो उनको दे सकता है उठा के, अच्छा ये 250 ग्राम, ये मैडम आपका 500 ग्राम। स्पीड बढ़ती है, उसका टाइम बचता है, वो ज्यादा कस्टमर कर सकता है। देखो, समथिंग अलग, समथिंग डिफरेंट, इनोवेटिव। रिसाइकल पैकेजिंग, ये ब्राउन पेपर बैग यूज कर सकता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। एक छोटे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि स्माइल, किसी भी बिजनेस के लिए, आई एम सॉरी कोई भी बिजनेस के लिए। आनंद जी, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, तो वो कहते हैं कि इफ यू आर नॉट एबल टू स्माइल, डू नॉट ओपन अ शॉप। Absolutely, absolutely. Smile is extremely important when you are in particularly retail business. Yeah. Yeah, So please yeah. remember. Yeah. Okay. Rohit, can I just finish in 2 minutes and then come back to your question? Huh? Give me just 2 more minutes and we'll start question answers shortly. He can tie up with some farmers. Say some of the sellers can come together. They can tie up with farmers, and then maybe together they can, do good business from farm to fork kind of model. Cut vegetables, you all know, they can be offered. और एक चीज है, कैन दे ऑफर ऑर्गेनिक? अभी ये ऑर्गेनिक रोज देने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर बेसिस पे जा सकता है कि मैडम आप ऑर्गेनिक परचेस करती हो, हमारे पास बहुत ही अच्छा रिलायबल सोर्स है, आप जो चाहते हो अगर आप ऑर्डर दोगी तो अगले हफ्ते में लाके दूंगा आपको। तो देखिए, ये आपका एक प्रीमियम की तरफ आपका बिजनेस गया। हाँ, तो ये हो सकता है। और एक चीज है, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, हम लोग सब अभी सिटीज में हम ये ब्रोकोली और ये सब खाते हैं, तो क्या ये भी हाई प्राइस है, हाई मार्जिन भी हो सकता है इसमें, और ये एज पर ऑर्डर देना है आपको, रोज नहीं रखना है, इतना इन्वेंट्री नहीं रखना है, आपको परवड़ेगा नहीं, ये जो लोग इनको परवड़ेगा। तो ये कर सकते हैं क्या एज पर ऑर्डर? थिंक अबाउट इट। Another, last few points is that can you give special price to your loyal customers? Bundling of fruits and vegetables as per order. Yeah, something free. Indian customer loves free. So free curry leaves, करी पत्ता जिसे बोलते हैं हम, फ्री दे दो। शेयरिंग लाइव लोकेशन, I'll tell you why. योर इम्पोर्टेंट लॉयल कस्टमर्स के साथ अगर आप लाइव ये लोकेशन शेयर करते हो, इमेजिन घर में क्या होता है कि दैट मैडम इज बिजी इन हर किचन और डूइंग सम वर्क, and she knows that okay, you are 4 lanes from there, so she can finish, quickly make her tea, have the tea, and then maybe ready to go down and maybe buy vegetables. Live location sharing. अभी एक चीज आप याद रखिएगा कि ऐसे नहीं है कि ये सब काम करेगा, इसमें से कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो कर रहा है काम आप कंटिन्यू रखिएगा, जो नहीं कर रहा है काम उससे छोड़ दीजिएगा। ऐसे थोड़ी बात है कि एक बार आपने शुरू की है कोई प्रैक्टिस तो रखनी ही है। लेकिन there are some things will work, some things will not work. You have to remember what works, what doesn't work, and accordingly you continue.
या ऑर्डर फॉर्म पहले से दे के ऑर्डर लेके फिर डिलीवरी करनी है, ये हो सकता है। डिस्प्ले की बात मैं कर रहा था। सो देखो अभी ये डिस्प्ले, अभी अगर आप देखेंगे तो ये पुरानी डिस्कार्डेड व्हीकल्स है जिसको इन्होंने डेकोरेट करके बहुत बढ़िया डिस्प्ले स्टॉल्स कार्ड्स बना दिए हैं। अभी इसमें कितना खर्चा आएगा? 1000-2000 रुपए। कैन वी नॉट ऑल ऑफ अस क्राउड फंड 1000, 2000, 4000 रुपीज एंड डू दिस फॉर वेजिटेबल वेंडर्स? या सो थिंक अबाउट इट। ये एक लाइव एग्जांपल शेयर करता हूँ और फिर हम विल कम टू दी कंक्लूजन। ये देखिए एक वैष्णो ढाबा, हमारा एक डिजाइनर फ्रेंड है, उसने इसको उसके ऊपर काम किया। कैसे काम किया और क्या किया? आनंद जी, दिस रोहित इज रेजिंग हैंड, शुड वी टेक दैट क्वेश्चन? हेलो रोहित जी, अभी कुछ एक मिनट में हम सेशन अभी यानी जो प्रेजेंटेशन है उसके बाद हम ले सकते हैं आपका क्वेश्चन। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं। हाँ रोहित, जस्ट 2 मिनट की बात है, आप पहले समझ लीजिएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, फिर हम बात करेंगे जरूर। हाँ ओके सर, ओके। बेसिकली ये जो कैसे दिख रहा है आप देखिए, क्या है ये ढाबा। इस ढाबे को ये बदल दिया हमारे दोस्त ने इस प्रकार से। आप उसकी टी शर्ट भी देखिएगा, वो सारा माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ है, ज्यादा नहीं चेंज हुआ है लेकिन कुछ कुछ बदला है, लेकिन ब्रांडिंग उसकी बदली है, आप देखिएगा। उसके लिए बैग उसने डिजाइन कर दी, विजिटिंग कार्ड्स, कुछ स्टैम्प्स, या वेरी इंटरेस्टिंग मेकओवर। एंड देन ये मेनू कार्ड, सत्तू वाले लिट्टी, क्या मालूम नहीं क्या क्या है ये चीज, लेकिन this brings a lot of value, in presenting that small little dhaba, there. Okay, so मेरा एक ही सवाल है फाइनली आप सबको कि can you apply the same logic to your career, to your business, and if you do this, marketing, selling yourself differently, then you can definitely build your business. All right. Okay, I have a summary, but ऐसा करते हैं आनंद जी, I'll stop my presentation here. Sure. And we'll take question answers, and उसके बाद में finally एक summary करते हैं आज, और उसके बाद एक कहानी कहना चाहूंगा आखिर में, जैसे मैं हर बार करता। Absolutely. Okay, yeah. We are curious. I'm done. So अभय जी, और भी एक आपने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में भी शायद लोग सोच रहे हैं, ASBKS के बारे में। Yes. उसकी क्यूरियोसिटी और थोड़ी रहने दीजिए आनंद जी, वो आखिर में बताते हैं। Sure. Over to Rohit. Mr. Rohit, you can go ahead and ask the question. यस सर, हाय सर, मैं रोहित नेगी हूँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैं उत्तराखंड से हूँ। सो सर, अभी आपने कहा था कि जैसे अभी एग्जांपल दिया आपने ठेली वाले का, मतलब कोई वेजिटेबल्स कीपर से वो से बेचता है, बट मेरा ये क्वेश्चन था, अगर वो कुछ चीज ऐड करता है, सपोज कैरी बैग ऐड कर दिया उसने, ये सब ऐड कर दिया, तो इसकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी ना सर इसके साथ साथ? बिल्कुल। तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, बट जो रिमेनिंग जो अदर है, क्योंकि जितना मैंने समझा है कि इंडिया के जो मार्केट है, लोग कॉस्ट पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग। राइट। सो रोहित जी, नहीं, मैंने आपने और एक चीज मैंने कही रोहित जी, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड हु इज माय कस्टमर। हाँ, यस। अगर आपका कस्टमर उस ब्रैकेट में है कि जो आपकी पेपर बैग को वैल्यू करेगा, तो आपको ये करना है। अगर वो नहीं वैल्यू कर रहा है तो उसे नहीं करना है आपको। आपकी बात बिल्कुल बराबर है, सही है, लेकिन कोई कस्टमर ऐसे, जैसे लॉयल कस्टमर है आपके, उनको आप बोलिएगा कि मैडम मैं ट्राई करता हूँ कि मैं प्लास्टिक ना यूज करूँ, मैं पेपर बैग यूज करूँ, और आपके लिए ये और पेपर बैग जो है वो पेपर न्यूज़पेपर का भी हो सकता है भाई, ऐसे जरूरी नहीं कि प्लास्टिक बैग हो। तो थोड़ा सा सोचना होगा, और अगर ये आपके कस्टमर को वैल्यू उसकी है तो ही करना है आपको, नहीं तो नहीं करना है भाई जी, नहीं करना है। ओके, तो सर एक क्वेश्चन और भी था, जैसे सपोज बिग बास्केट ये जैसी कंपनी है, बड़ी कंपनियां इन सब में डील कर रही है ऑलरेडी। ओके, बिकॉज ये बल्क में लेती है, और ये मार्जिन, क्योंकि ये बल्क में सेल करती है तो मार्जिन कम रखती है। बिल्कुल। एक कोई छोटा सा मतलब शॉपकीपर है, उसके पास कम क्वांटिटी में सामान है, बट हम शायद ऐसा कर सकते हैं कि इमोशनली पिच टैग बनाए कुछ
स्टोरी जिससे कनेक्ट बढ़े, तो कुछ बेनिफिट्स हो। बिल्कुल, आपने सही बात की। ये इमोशनल पिच, या कि आप कस्टमर को कह सकते हो, जैसे आपका ही बात में आगे लेके जाता हूँ रोहित जी, कि आप कस्टमर को कह सकते हो कि मैडम मुझे मालूम है कि बिग बास्केट बहुत बड़ी कंपनी है और आपको बहुत अच्छा सामान मिलता है, लेकिन मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है और मैं आपको बहुत बढ़िया माल दूंगा, आप सिर्फ ऑर्डर कीजिएगा। सी, ये इमोशनल अपील हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट एडिशन। थैंक यू। राइट, आप क्या करते हो रोहित जी, इफ आई मे आस्क? एक्चुअली सर अभी हमारा स्टार्टअप है, हार्ट एंड हिल्स करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो हम यहाँ पे फार्मर के साथ काम कर रहे हैं जो पहाड़ों में वुमेन्स हैं यहाँ पे। ओह, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। फिंगर मिलेट एंड बार्नयार्ड मिलेट पे काम कर रहे हैं हम अभी। ओके, वाओ, विश यू ऑल द बेस्ट रोहित जी। थैंक यू सो मच सर। या, थैंक्स। ग्रेट। तो जैसे ही रोहित जी ने अभी क्वेश्चन पूछा, वैसे मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू टू हैव योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। अभय जी, मुझे एक क्वेश्चन है कि जब हम मार्केटिंग के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी शुरुआत करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारी एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए लोग सोचते हैं, तो इसमें सोशल मीडिया पर लाइक्स या शेयर्स हो जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कुछ एंटरप्रेन्योर्स को कि इसका जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन नहीं हो पाता है, और ये कॉमन क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो इसमें कन्वर्जन के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखना जरूरी है कि एक्चुअल कन्वर्जन हो के मॉनेटरी बेनिफिट हो? राइट, अभी जो आप कह रहे हो अनिल जी, ये बिल्कुल सही है कि लाइक्स मिलते हैं लेकिन कस्टमर नहीं मिलते। या so and likes cannot run your kitchen, right? Exactly. you need money to run your kitchen, and you need profits to run your. So what I feel is that again this will differ from business to business, but हम जो सेल्स में कहते हैं ना कि अगर आपके पास ये लाइक में से कोई कुछ लीड्स डेवलप होते हैं, तो वो लीड्स को कैसे नर्चर करें, हाँ, कि लीड्स को कैसे हम डेवलप करें, इसकी अगर आपके पास तैयारियां हो तो ये आगे बढ़ सकता है। जैसे आपको समझो 50 लाइक्स मिल गए और उसमें से 3, 4, 8 लोगों ने कुछ कमेंट्स लिखे हैं, या आपको समझो 5 फोन आ गए, 50 आपको लाइक्स और 5 फोन आ गए। अभी ये 5 फोन में से आप आइडेंटिफाई करते हैं ये 3 लोग है ना, ये मेरे कस्टमर हो सकते हैं। तो ये 3 लोगों के लिए क्या आपके पास है रेडी कि मैं इनको क्या मटेरियल भेज दूं, इनको क्या राइटअप भेज दूं, इनको क्या फोटोग्राफ भेज दूं, इनको क्या वीडियो भेज दूं, ये क्या मटेरियल आपके पास रेडी है? ये थोड़े सोचने की बात है। ये एंटरप्रेन्योर ने अगर सोचा तो ये शायद कन्वर्जन की परसेंटेज बढ़ सकती है। बट अगेन इट इज बिजनेस टू बिजनेस, विल हैव टू हैव डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दैट। या एब्सोल्युटली। या और एक क्वेश्चन है अभय जी कि जब एक एंटरप्रेन्योर आज की तारीख में शॉप खोलने का सोचता है, तो in today's this whole corona situation, or people not getting out of the house, so the footfall getting less is a common challenge that people are facing. Correct. Businesses are facing कि पहले फुटफॉल ही कम हो गया है, इसलिए वो पूरा जो साइकिल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है कि तो फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए और आगे जाते हुए जब हम सोचेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का एक कॉम्बिनेशन करना है, तो इसमें फुटफॉल पर कब ध्यान देना है और डिजिटल पर कब ध्यान देना है, ऐसा कुछ टाइम सेंस हमें रखना चाहिए। Yeah, like we said in our presentation also, Anand ji, कि combination of online offline is important for every business. That is the first this thing. लेकिन आपने जो सवाल पूछा है इसके पीछे थोड़ा मैं जाता हूँ, और एक बहुत ही important पॉइंट आपने टच किया है। See, आज के बिजनेस में let us take example of a restaurant. हाँ, रेस्टोरेंट में आज फुटफॉल कम है ही, सबको मालूम है। हम सब ने कितना कम किया है, रेस्टोरेंट जाना बंद कर दिया है वगैरह वगैरह। तो सो अभी रेस्टोरेंट क्या करेगा?
they will depend on Swiggy, they will depend on Zomato and pay them heavy commission अगर चालू रखना है रेस्टोरेंट को तो। और फिर भी ये ओनली डिलीवरीज पे रेस्टोरेंट चालू नहीं रह सकता है। उसके लिए करना क्या है आपको? करना ये है कि क्या आपके पास डेटाबेस है कि कौन आपके कस्टमर्स है। आर यू कलेक्टिंग डेटाबेस? जैसे मैंने कहा कि अगर कोई रेस्टोरेंट ऐसा है कि जिसके पास अपने कस्टमर का डेटाबेस है तो definitely they would have developed an engagement program on WhatsApp or whatever. I mean there are so many mediums today. लेकिन नहीं होता है, हम नहीं सोचते हैं। I'll give you, I had a customer called Pizzeria, a pizza veg pizza chain. आनंद जी, मैं कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा हमने उसका मार्केटिंग डेवलप किया था और ग्रोथ स्ट्रेटेजी डेवलप की थी कि हमारे पास 5 आउटलेट के 27,000 कस्टमर्स के नेम, एड्रेसेस, फोन नंबर, ईमेल आईडीज थे। ग्रेट। इतना कि जब हम वो बेचना चाहा तो हमने बोला कि ये भी हमारी एक एसेट है। बिल्कुल नहीं, चलो मैं ये समझता हूँ कि लोग अपना सही नंबर कभी कभी नहीं देते हैं, लेकिन ये सारे कस्टमर, एक हमारा ऑब्जर्वेशन था कि 70%, 65-70% वे रेगुलर कस्टमर्स। हाँ, सो वी हैड वेरी गुड लाइव एंड यूजफुल डेटा। तो कितने आज रेस्टोरेंट है कि अपने कस्टमर का डेटा कलेक्ट करते हैं। अगर आपकी चौथी या पांचवी वेव आती है तो आप कैसे तैयार हो उसके लिए? नहीं हो भाई। तो this can be one of the ways to address that issue of this thing, and of course this data will be used for you to take you online also, isn't it? Absolutely. Yeah. Absolutely. Thank you, sir. अभी नम्रता जी को कुछ क्वेश्चन पूछना है। नम्रता जी, you can unmute and ask. Yes. Yeah. Good evening, Anand ji and Abhay ji. Actually, I am an incense stick manufacturer, running my business since last 5 years. Now I have come up with my brand called as a Bhakta Agarbatti. But my product is ready, but I stuck into selling. Like I'm having only one distributor with me, but his response is also low because now again the Amricon, the COVID again raised up his head, and sellers are hesitating to buy the new product. Like this is not a branded product and we cannot take a chance with this product. So I again stuck in that, and same point I come up with the अगर हम लोग शॉप लेते हैं और शॉप में like अपना ब्रांड का शॉप लेके भी कर रहे हैं तो अगेन द रेंट आया उसमें, उसके बाद 10 months का सब इन्वेस्टमेंट है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इतना सब करने के बाद भी अगर सेल नहीं होता है या अपने प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं मिलती है तो उसमें अगेन हम लोग स्टक हो जाएंगे। सो एट दिस मोमेंट व्हाट शुड बी माय मैं क्या कर सकती हूँ अपना सेल? कहाँ से हो नम्रता जी आप? मुंबई। किस एरिया में मुंबई में आप रहते हो? दादर। हाँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसका रीजन है, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, ये तो है कि इट विल बी डिफिकल्ट। ये जो आपकी कैटेगरी है इंसेंस स्टिक्स, आप इंसेंस स्टिक्स बनाते हो या उसका केमिकल बनाते हो? आपने क्या कहा? इंसेंस स्टिक्स बनाते हो? इंसेंस स्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अगरबत्ती जो तो उसको बोलते हैं। ओके। तो नम्रता जी, आप जब कह रहे थे तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत डिफिकल्ट समय है, ये मैं बिल्कुल जानता हूँ। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अगर आपका ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या कुछ अलग बनाते हैं आप, या कुछ डिफरेंट है इसमें? नहीं, अगरबत्ती में तो स्टैंडर्ड ही आता है, लाइक मतलब जो सालों से चलता आ रहा है, लाइक ब्लैक स्टिक, ब्राउन स्टिक, और अभी कलर स्टिक्स वगैरह बहुत सारे हैं। लेकिन जैसे हम लोग अभी इतना साल काम कर रहे हैं तो जैसे बेसिक मार्केट का ये पता चला कि जो 10 रुपीज के पाउच रहते हैं दैट इज द FMCG प्रोडक्ट जो फास्ट मूविंग होता है मार्केट में। सो आई कम अप विद दैट, आई हैव लॉन्च दैट, क्योंकि अभी तो सीन ऐसा है कि ठीक है 10 रुपए का प्रोडक्ट तो चलेगा मार्केट में, वो हिसाब से वी हैव लॉन्च वन प्रोडक्ट। लेकिन अगेन वैसे ही हो रहा है कि अगर सेल्समैन भी रखते हैं तो सेल्समैन का सैलरी निकलना भी चाहिए उसमें, ये सब देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड। आउटलेट, हाँ, सो जस्ट लाइक इन दैट एरिया।
इसके लिए सी मुझे क्या लगता है कि ये आसान तो है नहीं, डिफिकल्ट है। हाँ, सो लेट मी ऑनेस्टली टेल यू। लेकिन ऐसा क्या ऐसे हो सकता है कि आपका कस्टमर कहाँ कहाँ है, मंदिर के पास है शायद। हाँ, तो मंदिर के पास वाले जो शॉप्स है वो शायद आपसे खरीदना चाहेंगे, या वो एक चीज हो सकती है। क्या ये आपने ऑनलाइन कुछ ट्राई किया है इसको सेल करने का, यस यस कुछ यस, आई साइट्स? हैव डन बिकॉज ऑनलाइन आल्सो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां से भी नहीं कस्टमर नहीं आते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं। नहीं, हम्म, आपने प्रयास किया, यानी आपने सेल करने का आपने पोस्ट वगैरह किया होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन पे काफी सारी साइट्स है जो ऐसे ये पूजा ई के कॉमर्स साहित्य साइट्स की बेचते बात हैं। कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, हाँ, जो नहीं ई पूजा, कॉमर्स साइट, यस। नहीं नहीं, पूजा के जो आर्टिकल्स है वो बेचते हैं। हाँ, तो उस वहां पे शायद आप अगर ढूंढेंगे तो हजारों साइट्स है अभी। हाँ, तो शायद उनको आपसे लेने में फायदा हो सकता है, बिकॉज आप मैन्युफैक्चर करती हो, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। तो ऐसे आपको अलग अलग ऐसे जैसे मंदिर का मैंने बोला, या जो रिलीजियस प्रोडक्ट बेचने वाली जो साइट्स है, इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का। तो ऐसे सारे लिस्ट आपको बैठ के, मैं आप कौन है, आप अकेली हो या आपके पार्टनर से कोई? नहीं, दिस इज होम बेस्ड बिजनेस, लाइक हम लोग मतलब घर हेलो, से ओके ओके। तो मेरा क्या कहना है, मेरा क्या कहना है कि आप आपके दोस्तों में से या आपके जो पड़ोसी है जो ऐसे थोड़े नॉलेजेबल लोग हैं, इनको साथ बैठ जाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिएगा थोड़ा सा। इसको जैसे आपने अभी 2-3 चीजें मैंने ऑफलाइन बता दी, ऐसे बहुत हो सकता है। जैसे आपका अगर आपका इंडस्ट्री का अगर थोड़ा सा प्रीमियम होता था, तो मैंने कहा होता कि आप हर एक उनके पास जा सकते हो बेचने के लिए, लेकिन आपका स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो उसके लिए अलग आपको तरीका ढूंढना होगा। या ओके। ओके, या ओके, या आई ट्राई दैट कि जो अपने लाइक ई कॉमर्स साइट्स का भी जो बता कि रिलीजन्स हाँ, वो जो भी बहुत पूजा बहुत सारे सामग्री हैं। के जो है हाँ, वो एक्चुअली मैंने थोड़ा मतलब मेरे नजर में नहीं आया है एक्चुअली अभी नहीं, तक कि आप ऐसे ढूंढिएगा साइट्स है। बहुत। हाँ, मेरे पास कस्टमर्स है वो, उसमें से 3-4 लोग मुझे मालूम है कि जो ऐसे बिजनेस करते हैं ओके ऑनलाइन पे ये सब चीजें बेचने के। हाँ, ओके। तो आपको चाहिए तो मैं एक रेफरेंस तो आपको दे देता हूँ, आनंद जी को आप अपना नंबर या दे देना, मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ कुछ 1-2 ओके, आई विल रेफरेंसेस। कनेक्ट विथ योर टीम, लाइक दयासरा का जो भी टीम है प्लीज उसमें प्लीज, Sure, या बताइए। definitely, तो definitely. राइट We will राइट। support you on that. एक यस क्वेश्चन थैंक यू, आया है। ऑल द बेस्ट नम्रता जी, ऑल द बेस्ट। यस यस, थैंक यू। या या You mentioned about highlighting the pain points of customer help to initiate the sales process. What is the best source to find the pain points about the customer? Or is it good to ask directly to the customer about their pain points? Is it appreciated by the customer to ओके। प्रसन्न, आप क्या 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 बिजनेस में हो आप, प्रसन्न जी? Sir, What do you do? actually, I'm doing a job, but my wife is in the some business. Actually, she's in What is that? bakery premix basically. ओके ओके ओके, ग्रेट। सो बेकरी का अगर बिजनेस है आपका प्रसन्न जी, तो डायरेक्टली कस्टमर से पूछ सकते हो आपकी ये सारी चीजें हम बनाते हैं सर, मैडम। तो आप क्या हमें बताएंगे कि आपको क्या लगता है, जैसे आप हमें अगर पूछेंगे, जैसे मुझे आप अपना कस्टमर समझेंगे, हम भी चाय के साथ बिस्किट और बटर खाते हैं। हाँ, तो ये टोस्ट खाते हैं। तो आप मुझे पूछेंगे तो हमें क्रिस्पी चाहिए, सॉल्ट और स्वीट का एक मिक्सचर चाहिए, वगैरह वगैरह। और ऐसे थोड़े कस्टमाइज करके आपने अगर कुछ बना दिया, और मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर फिर आपको मिलेंगे। एक मार्केट सेगमेंटेशन की बात होती है उसमें, कि एक सेगमेंट ढूंढना है आपको। आपकी वाइफ जो अच्छा करती है, अगर केक करती है, टोस्ट करती है, बिस्किट, जो भी कुकीज करती है, जो भी करती है, तो उसको उसको आपको सोचना होगा कि इसमें आपकी स्पेशलिटी क्या है। एक दूसरी चीज, आप कस्टमर को डायरेक्टली पूछ सकते हो। या तो you select 15, 20, 30 of your customers, go and talk to them directly, no harm। आपकी कैटेगरी ऐसी है कि लोग बताएंगे आपको
कि अरे ये बहुत बढ़िया चीज है आपकी, लेकिन ये ना इसमें थोड़ा सा हमको पैकिंग छोटा लगता है, बड़ा चाहिए, बड़ा है छोटा चाहिए, जो भी है तो बता देंगे आपको। हाँ, you should talk to customers actually. Okay, sir. Thank you. Thanks for your. एंड आपके इसके लिए और एक सजेशन मैं दे सकता हूँ कि जो सक्सेसफुल बेकरी कंपनीज है उनको आप फॉलो कीजिए ना। वो क्या करते हैं, उन्होंने भी यही किया है बस, Right, sir. है ना? Because what I've seen, sir, actually, in once we interact with the customer and we highlight the pain point, they sometimes they get offended. You know, they like, why are you talking about? You know, so sometimes it नहीं, happens. वो पूछने की बात भी होती है प्रसन्न जी। Yeah. हम शायद ठीक से पूछेंगे कि मुझे मदद चाहिए। See, your approach should be that I need your help, you know, और हेल्प करने के हर कोई रेडी होता है, आप समझिएगा। हाँ, कि मुझे आपकी मदद चाहिए मैडम, और इसमें थोड़ा गाइड कर सकते हो कि क्या क्या अच्छा लगेगा लोगों को, आपको क्या लगता है अच्छा, यू नो, ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं आप शायद। Yes, Okay. sir. Yes, sir. Prasanna ji और Dr. Anand Deshpande ji, who is a very experienced businessman. So while we were chatting with him, you know, he always says that, you know, partner with your customer. Meaning ऐसा सोचिए कि जो आपके कस्टमर है वो आपके पार्टनर है, और उनको पार्टिसिपेट करवा लीजिए आपके बिजनेस में। तो आपका जो अप्रोच है वो ज्यादा कोलैबोरेटिव हो जाता है, और उससे आप जो फेस कर रहे हैं वो डिफिकल्टी आप उससे दूर जाएंगे कि यानी आप जब पूछते हैं तो वो तरीका भी चेंज हो जाएगा, और उनका भी अप्रोच, उनको भी पार्टिसिपेटिव लगेगा कि हम इस बिजनेस में कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट जनरली इज अ वेरी ग्रेट अप्रोच। I just add to you know what you said, आनंद जी, कि अभी एक हमारे कोई मिलने के लिए आया था और मुझे बताया कि मेरा लड़का बहुत अच्छा शेफ था, और वो अभी बाहर आके उसने बिजनेस शुरू किया और वो बिस्किट्स बनाता है। आई सेड वेरी गुड, क्या बात है, हमें दे दीजिएगा बिस्किट, हम विल बाय देम। तो उन्होंने दूसरे दिन बिस्किट आके गिफ्ट दे दिए कि आप इसको ट्राई कीजिएगा। अभी वो देने के बाद ना ही उन्होंने पूछा है कि कैसे रहे बिस्किट, ना ही उन्होंने कांटेक्ट किया है कि आपको और चाहिए, ना ही उन्होंने पूछा है कि क्या बदलाव कर सकते हैं इसमें। तो दे लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली वी लव बिस्किट्स, वी लव कुकीज, so we could have been the regular customers, and I was looking for some such small entrepreneur who can give me biscuits of my choice, my taste. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये हो सकता है, ये धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, नो, दे नीड टू वर्क ऑन इट। या ग्रेट। सो सूर्या जी ने क्वेश्चन पूछा है कि आर देयर एनी हेल्थ साइट्स फॉर हेल्थ प्रोडक्ट। शायद वो यानी मार्केट प्लेस की तरफ से या ई कॉमर्स वेबसाइट्स की तरफ से पूछ रहे होंगे कि आर देयर एनी हेल्थ साइट्स फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स। नहीं सूर्या जी, ये एग्जैक्टली क्या आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अगर बताएंगे तो मे बी we can guide you. We are basically into Ayurvedic health products, you know, and some of them are even क्या बोलते हैं उसको, supplements. Like we have some cow colostrum and all that. Okay. And we have some even magnetic therapy and all that, and we have got products for that also, which is today required because the Earth's magnets and all are not being reached to the people properly, and they are very effective. Honestly speaking, a lot of pain of people has subsided. People have been so for these type of things, we are of course selling well through networking and all that. But at the can, like you suggested just now, that there are some sites for maybe for puja sites. So I thought there are some health sites for health people who are more on the prevention. You see, they want prevention than cure. राइट प्रिवेंशन के बाद नहीं, अभी फिलहाल तो इमीडिएटली कोई याद नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन ऑनलाइन ही आपको ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, इस कैटेगरी के लिए। आई एम सॉरी। थैंक यू सर। ओके, राइट, ऑल द बेस्ट। या ग्रेट। तो आई थिंक entrepreneurs are also asking questions, and these questions related to e-commerce platforms or selling opportunities online are seemingly increased day by day, and everybody wants to know about you know, how can one sell online, how can show up you know, on the online virtual space.
तो इसमें एक जस्ट वांटेड टू मेक अ नोट कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन, आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस, इसके साथ में एंटरप्रेन्योर शुरुआत कर सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रेजेंस बढ़ेगा, द रीच, आउटरीच, पीपल टॉकिंग अबाउट इट, और ये जो एक थोड़ा एक्टिविटी जनरेट होना शुरू होता है वर्चुअल स्पेस में, वो इंक्रीज हो जाता है और आपका नेटवर्क बढ़ जाता है। एंड ऑल्सो चूजिंग द राइट चैनल। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे डिजिटल एक्सपर्ट्स भी बताते रहते हैं कि आप ठीक से आपका चैनल सोचिए कि क्या वो लिंक्डइन है। जैसे अभय जी यहाँ पे है, उनका लिंक्डइन में बहुत ही बड़ा नेटवर्क और एक्सपर्टीज है। Abhay ji, LinkedIn is something that you have studied thoroughly, and you have very high number of followers in that space. So, can you share your comments? 13,603 to be precise. Right. या नहीं तो नहीं, चैनल आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मुझे एक थोड़ा उसके पहले कुछ बताना है। See, online is a medium. Please understand, for everybody. Unless you have a great product or great service, it is not going to sell, online or offline. तो पहले ये चीज चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया हो, आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो, और वो आपको वर्ड ऑफ माउथ जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ, वो अपने आप मिलेगा। एंड देन यू थिंक ऑफ गोइंग ऑनलाइन। ऑनलाइन जाने की जल्दी ना करें। अगर आप डिससेटिस्फाई करते हो कस्टमर को, तो वो इट विल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर ऑनलाइन। Absolutely. वो अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो भी वो हो जाएगा, वाइल्ड नहीं लेकिन फायर हो जाएगा। बट dissatisfied like wildfire. So we should be careful about it. That is my suggestion. But what you said is yes. For me, there are two channels I think primarily are important. Three, I would say. One is of course LinkedIn, like you mentioned. Second is YouTube, and third is WhatsApp. So I'm doing very good activity, I would say. I would rate better on LinkedIn, but WhatsApp I'm doing some activity. But YouTube is something we have just a month back we have started strategizing on that, and we have started working on that. So my team is working. We have shot the first video, and we'll be doing lot of activity on YouTube in this year. Great. Is what we have planned. So we need to we need to decide channel and accordingly work on it, and Absolutely. consistently work on it. Absolutely. मेहनत करनी है। Sir ji, I would just like to say one word. Yes. Abhay ji, thank you very much for that very great advice that you gave. Don't hurry for going on social media. I'm thinking of a team. I mean, really, I'm grateful to you, sir. I will definitely take your advice and wait before. नहीं देखो, 1 घंटे के इसमें एक टिप जो आपसे मिला, ये करोड़ रुपए का टिप है सर। मैं बिल भेज देता हूँ। हमको पर सर हम तो वर्क बताएंगे। Really great. Yes. Really great. Thank you, sir. Thank you so much. I really appreciate that. Yeah. Thank you, sir. All the best. So, towards the conclusion of the session, I just would like to, we will come to the summary and also the curiosity question that we began with. I'll come back to I that. am very curious about knowing what it is all about. But please visit deyasra.in, requesting all of you to visit deyasra.in for more interactions and also support for your business. All our experts, mentors, as well as all our resources are absolutely, most of it are available very much freely, and also you can request for other services in all domains: compliance, funding, marketing, sales, and whatnot. So over to you for the summary, Abhay ji, and also the curiosity question. Yes, friends, just summarize करते हैं हमने क्या क्या कहा इस सेशन में। पहली चीज है कि सेलिंग इज हेल्पिंग पीपल बाय। आप अपने आप को पूछो कि क्या हम कस्टमर को बाय करने में मदद कर रहे हैं, परचेस करने में मदद कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस में आप हो। हाँ, दूसरी बात ये है कि marketing is understanding customers and satisfying customers, create, communicate, deliver value. It's very important. याद रखिएगा, online plus offline का combination ही काम करेगा, not otherwise, because this is Indian market. India is very typical, market. See, इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने प्रोग्राम में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें 12% लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग हैं,
तो इसका मतलब ये है कि उनको भी सेलिंग की जरूरत है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो ऑनलाइन सर्विस बेच रहे हैं उनको भी ऑफलाइन सेलिंग की बारे में सोचना पड़ रहा है, वो सोचना जरूरी है। हाँ, इनोवेशन का बात मैंने किया, कुछ हट के कुछ अलग आप कीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आस्क कस्टमर्स एंड दे विल हेल्प यू, टॉक टू देम एंड दे विल हेल्प यू। हमने कहा entrepreneur herself should be a good salesperson. That is very, very important message from me. And lastly, I said we should, have a good smile, welcome when we are, in the business. Lastly, coming back to this ASBKS, ये क्या है? हाँ, रोहित जी, आप बताना चाहते हैं? नो सर, मेरे पे एक क्वेश्चन है। हाँ। सर, अगर सपोज हमारे माइंड में एक प्रोडक्ट है, तो उसके हम मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से पॉइंटर हो सकते हैं कि जो हम अपने मार्केट रिसर्च के उसमें फ्रेम में उन पॉइंटर को ऐड करें? नहीं तो योर प्रोडक्ट के बारे में मैं बता नहीं सकता क्योंकि आपका क्या प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बारे में आप ये सोच सकते हो कि कौन परचेस करने में, जैसे मैंने बोला कि आपको आपका मार्केट क्या है, कहाँ है, वो सोचना है। उस हिसाब से आपको वो क्वेश्चंस डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे मुझे समझ में ना है कि अगर ये कैटेगरी बेसिस पे थोड़ा जा सकता है क्वेश्चन, रोहित जी। हाँ, कि आपकी क्या कैटेगरी है, उस हिसाब से उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा। देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर दैट आई थिंक आई शुड गिव, बट बेसिकली मेरा क्या कहना है, मार्केट रिसर्च ये बहुत बड़ा शब्द है। आई वुड से सिंपल मार्केट स्टडी। क्या आप जैसे मैंने जो बेकरी बनाने वाले इनको मैंने बोला कि क्या आप 10 लोगों के पास जाके उनको पूछ सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, तो वो अलग अलग कुछ व्यू पॉइंट्स दे देंगे आपको, तो ये इनको आप रिकॉर्ड कीजिएगा। तो ऐसे सिंपल सी टेक्निक यूज कीजिएगा, डोंट गो इनटू रिसर्च। बड़ी बात है वो, थोड़ा इस्टेब्लिश होने के बाद फिर आप एजेंसी भी ले सकते हो इस काम के लिए, ये बड़ा स्पेशलाइज काम है। हाँ, ओके, तो मेरा कहने का मतलब पहले प्रोडक्ट डेवलप करें या पहले मार्केट रिसर्च करें? नहीं, डोंट मेक दिस मिस्टेक। गुड यू क्लैरिफाइड योर क्वेश्चन। पहले मार्केट स्टडी कीजिए और फिर प्रोडक्ट डेवलप कीजिए, प्लीज। हाँ, ओके राइट। अभी फ्रेंड्स, ये ASBKS क्या है मालूम है? ये मैंने बोला कि आज के माहौल का बैकग्राउंड है ये। इसका आंसर, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये है, आंखों से बातें करना सीखो। अगर आप मास्क लगाते हो तो आपका स्माइल दिखाई नहीं देगा, तो आपको आंखों से बातें करनी है, आंखों से स्माइल देना है। आनंद जी, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस ASBKS. Yeah. Superb. Right. Just before we close, just announcing that please visit the website as well as discussion forum. अभय जी, हमने शुरुआत की है कि हमारे वेबसाइट पर एक सेपरेट डिस्कशन फोरम का भी यानी वहां पे मौजूद है एक पूरा पेज, तो आप आके वहाँ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वैसे कुछ ऑफलाइन यानी सेशन के बाद के जो क्वेश्चंस है आपके मन में आएंगे, तो वेबसाइट पर डिस्कशन फोरम पर आइए और वो क्वेश्चंस पूछिए। बाकी के एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपर्ट्स भी उसको आंसर करेंगे। एंड ऑल्सो टेल अस व्हाट एक्सपेरिमेंट्स यू आर डूइंग इन योर ओन बिजनेस। आपके बिजनेस एक्सपेरिमेंट जानने में भी हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो आइडियाज हमारे मिशन को मल्टीप्लाई करेंगी। ओवर टू यू अभय जी फॉर द स्टोरी। लास्ट 1 minute स्टोरी एंड वी विल स्टोरी स्टॉप। यस। एक हाथी होता है दोस्तों, एक हाथी है और एक मैना है। हम उसको मालूम है कि ये तो ये दोनों दोस्त होते हैं। अभी ये मत पूछो कि कैसे दोस्त है भाई, स्टोरी है तो दोस्त है। हाँ, तो ये दे आर फ्रेंड्स। एंड हाथी जो है इसको बड़ा दुख है कि ही कैन नॉट फ्लाई। वो मैना को बोलता है, अरे मैना तुम तो यू कैन फ्लाई, यू आर सो लकी वगैरह वगैरह। मैना बोलती है, अरे यार तू, इफ यू मे टेक एफर्ट्स you will be able to fly. He says, no, that's not possible. She says, no, why? You must try. If you try, you will fly. He says, no, that's not possible. कैसे हो सकता है? He said, नहीं ऐसा मत करो, कोशिश करनी चाहिए वगैरह वगैरह। उसको पेपअप करती है, मोटिवेट करती है। वो बोलता है, चुप बैठ, कुछ नहीं होता है, मैं कैसे फ्लाई कर सकता हूँ। चीज एक काम कर, वो अपना एक टूटा हुआ पंख निकालती है, उसको देती है और उसको बोलती है, ये पंख है ना, अपने कान के पीछे लगा दे और एफर्ट्स कर, हाँ तू उड़ सकता है। देन
he says कि अरे he says सुन मैं बोल रही हूँ ना कर, तो वो लेता है पंख अपना कान के पीछे लगाता है और he tries, he sees नहीं ऐसा नहीं, take good efforts, अच्छी तरह से, तो करते 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 वो एक मोमेंट आता है जहाँ elephant starts flying. Can you imagine elephant flying? हवा में सब जगह उड़ रहा है हाथी, वो सब he makes that ride and comes back and he says wow यार मैना क्या बात है, तुम्हारे पंख तो बड़े जादुई पंख है, they are magical. She says पागल है तू, ये पंख कुछ नहीं है, ये तुम्हारे एफर्ट्स है जिसकी वजह से you could fly. That reminds me of a हिंदी शेर, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है. Thank you so much, friends. Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you so much. Really great. Abhay ji. It was really great. Fabulous interacting with you as Yeah. usual, and really looking forward for many more interactions. तो हम मिलते रहेंगे. देआसरा के सभी एंटरप्रेन्योर्स को भी धन्यवाद जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया, फेसबुक पर पे जिन्होंने अटेंड किया उनको भी बहुत सारे धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट. आपको भी बड़ा धन्यवाद आनंद जी. थैंक यू. आपको भी बड़ा धन्यवाद. ऐसे प्रोग्राम करते रहो, हमें अच्छा लगता है. थैंक यू. हम तो गाड़ी रोक के आपके प्रोग्राम में मग्न हो गए अभय जी के और आपके. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस. Thank you, Surya ji. Thank you. God bless. Thank you so much. Thanks. All right. Thanks.